السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارتی حکومت انتقام کی آگ میں پاگل، بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کے خاندان کے افراد کے خلاف مقدمے کا اندراج۔ بھارت کی جانب سے انتہائی قابل احترام اور اصول پسند رہنما سید علی گیلانی کے جسد خاکی کو چھیننا اور ان کے خاندان کے افراد کے خلاف اقدام انتہائی شرمناک ہے۔ نازی فلسفے سے متاثر آر ایس ایس بی جے پی حکومت کی فسطائی سوچ کی یہ ایک اور مثال ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ سید علی گیلانی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا استعارہ تھے۔ ان کے انتقال کے بعد بھی بھارت پر خوف طاری۔ افغانستان میں بھی بھارت کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے گہرے اسٹریٹجک، سیاسی، سماجی اور معاشی تعلقات ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات چوہدری فواد حسین کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان افغانستان میں قیام امن کا خواہاں، افغانستان میں امن اور ترقی سے پاکستان بھی خوشحال ہوگا۔ تورخم بارڈر اور دیگر ملحقہ علاقوں میں کوئی مہاجر کیمپ نہیں بنایا گیا۔ بھارت کی حکومت اور میڈیا مہاجر کیمپ سے متعلق غلط پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے۔ افغانستان جانے والے مسافروں کو تمام تر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی میڈیا سے گفتگو۔ دشمن کے عزائم خاک میں ملانے والے شہداء، غازیوں اور ان سے جڑے تمام رشتوں کو قوم کا سلام۔ کل ملک بھر میں یوم دفاع الشہداء منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی بہادر افواج نے 6 ستمبر کو ملکی دفاع کرتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کا شاندار کردار۔ شاہینوں نے اپنے لہو سے وفا کی وہ لازوال داستانیں رقم کی جو رہتی دنیا تک مجاہدین افلاک کی بے مثال قربانیوں کی یاد دلاتی رہیں گی۔ اور اٹلی میں ورلڈ بیچ ریسلنگ، پاکستانی پہلوان انعام بٹ نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ 90 کلو گرام فری سٹائل میں انعام بٹ نے یوکرین کے پہلوان کو 3-0 سے شکست دی۔ کیبنٹ اور میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کل اور آج وہی معتبر انداز، مگر جدید تقاضوں کے ساتھ نئے چیلنجز۔ امن ہو یا نامساعد حالات، ہم رکھیں گے آپ کو باخبر، لمحہ با لمحہ قومی اور بین الاقوامی خبروں کے ساتھ۔ شامل ہوں گی بلیٹنز میں اکنامک اپڈیٹس اور کھیل کے سنسنی خیز مقابلوں کی رپورٹس، کابینہ کے اہم فیصلے، پارلیمنٹ کی کارروائی اور آپ کے حلقوں کے عوامی نمائندوں سے جڑی سرگرمیوں کا احوال۔ آپ رہیں گے آگاہ تعلیم اور صحت سے متعلق جدید ریسرچ اور خبروں سے۔ ہم کریں گے جرائم کے پیچھے چھپے چہروں کو بھی بے نقاب۔ پی ٹی وی کا مشن سچ ذمہ داری کے ساتھ۔ تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال، خاص طور پر انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमन इस्तेहकाम के लिए अफगान मसले के सियासी हल की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 4 दहाइयों से जारी इस तनाज़े के खात्मे के मौके से फ़ायदा उठाना होगा ताकि अफगान अवाम अमन, सलामती और खुशहाली हासिल कर सकें। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बिरादरी को अफगानिस्तान के साथ राबितों को बढ़ाना होगा ताकि मुआशी इस्तेहकाम और इंसानी ज़रूरियात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा सके। वज़ीर आज़म ने अफ़गान अवाम के लिए इमदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा के अहम किरदार को सराहा। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से इनखला और दूसरे कामों में फराहम की गई मुआवनत के बारे में भी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को आगाह किया। वज़ीर आज़म ने एंटोनियो गुतेरेस को पाकिस्तान के ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में जारी मिशन में मुकम्मल ताउन किया जाएगा। अफगानिस्तान में वादी पंजशेर पर कब्जे के लिए तालिबान और मुजाहमती फ़ौज के दरमियान लड़ाई जारी है। तालिबान ने सुबह पंजशेर के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और अब वादी के दारुल हुकूमत बाजारिक में लड़ाई जारी है। तालिबान ज़राए के मुताबिक तालिबान की पेशकदमी की रफ्तार कम है क्योंकि दारुल हुकूमत के रास्ते पर बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं और तालिबान बारूदी सुरंगों को नाकारा बना रहे हैं। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक आखिरी मज़ाहमती चौकियों पर लड़ाई जारी है। तालिबान माल गनीमत में मिला जदीद असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें बख्तरबंद गाड़ियाँ और ताकतवर तोपखाना शामिल है। बरतानवी अखबार के मुताबिक ऐसी इत्तलात मौसूल हुई हैं कि तालिबान दारुल हुकूमत बाजारक में दाखिल हो गए हैं। मज़ाहमती फ़ौज ने 600 तालिबान को हलाक करने का दावा किया है, लेकिन तालिबान का कहना है कि फ़तह के करीब पहुँच चुके हैं। बाज़ तज्ज़िया निगारों का कहना है कि तालिबान पंजशेर पर कब्जे के बाद अफ़गानिस्तान में नई हुकूमत के क़याम का ऐलान करेंगे। अफगानिस्तान में कतर के तकनीकी माहिरीन की एक टीम की मदद से काबुल एयरपोर्ट दोबारा खोल दिया गया है। बैरून मुल्क से काबुल तक इमदादी सामान के फ़िज़ाई तरसील दोबारा मुमकिन हुई है और अंदरून मुल्क परवाज़ें बहाल हो गई हैं। अल जज़ीरा ने काबुल में अपने नामानिगार के जरिए ये तस्दीक भी की है कि अब काबुल से मुल्क के दीगर शहरों को आने जाने वाली दाखिली परवाज़ें भी बहाल हो गई हैं। अफगानिस्तान में कतर के सफ़ीर ने बताया कि काबुल एयरपोर्ट के रनवे के अफगान हुकाम की मदद से मरम्मत कर दी गई है और काबुल से मज़ार शरीफ और कंधार जाने वाली 2 मुसाफिर परवाज़ें भी अपनी मंजिलों की जानिब रवाना हो गई हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन आज से सऊदी अरब समेत खित्ते के ममालिक का दौरा करेंगे, जहाँ वो उन ममालिक की क़यादत के साथ मुलाकातों में काबुल से इत्तहादी फ़ौजियों और उनके मुआविनीन के इनखला के दौरान ताउन पर शुक्रिया अदा करेंगे। तर्जमान पेंटागन जॉन कर्बी के बयान के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफ़ा अपने दौरे में सऊदी अरब, कतर, बहरीन और कुवैत के हुकाम और इन ममालिक में मौजूद अमरीकी फ़ौजियों से भी मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ आपको आगाह करें, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय फोर्सेज की तरफ से बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के जसद खाकी को छीनने और उनके ख़ानदान के अफराद के खिलाफ मुकदमात के इंदराज को इंतहाई शर्मनाक इकदाम करार दिया है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 92 साला बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी इंतहाई काबिल इज़्ज़त और उसूल पसंद शख्स थे। उन्होंने कहा कि ये नाजी फ़लसफ़े से मुतासिर RSS बीजेपी हुकूमत की फ़िस्ताई सोच की एक और मिसाल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि सैयद अली गिलानी मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का इस्तारा थे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बुजुर्ग रहनुमा के ख़ानदान के अफराद के खिलाफ मुकदमे का इंदराज इस बात का वाज़ेह सबूत है कि उनके इंतकाल के बाद भी भारत पर खौफ तारी है। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने अपने ट्वीट में कहा कि गमज़दा ख़ानदान पर मुकदमात का इंदराज दर हकीकत मोदी सरकार की फ़िस्तायत और RSS सोच का मज़हर है। मोदी सरकार इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और जुल्म की बदनुमा मिसाल है। इंसानी हुकूक की वज़ीर शरीन मज़ारी ने कहा कि बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा के इंतकाल के बावजूद सैयद अली गिलानी की भारतीय जबर इस्तिबदाद के खिलाफ जद्दोजहद ने फाशिस्ट मोदी हुकूमत को खौफज़दा कर दिया है। भारतीय हुकूमत ने न सिर्फ उनके जस्ते खाकी को लवाहिकीन से छीना बल्कि अब उनके ख़ानदान के अफराद से इंतकाम ले रहे हैं। भारत इसराइल की तरह तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन को पामाल कर रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने अपने ट्वीट में कहा कि सैयद अली गिलानी के जस्द खाकी को छीनने और मुकदमात के इंदराज का इक़दाम मोदी हुकूमत के खौफ की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम इस बात का मज़हर है कि दुनिया से कूच कर जाने वाले 92 साल उम्र के बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा से भारत किस कदर खौफज़दा है। वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा कि भारत इक़दाम मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर इस्तिबदाद के खिलाफ सैयद अली गिलानी की जद्दोजहद की कामयाबी का भी मज़हर है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ।
दोनों वज़राए ख़ारिजा के दरमियान अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान का दौरा करने पर शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अफगानिस्तान की सूरत हाल के तनाज़ुर में मरबूत इलाकाई लाहे अमल की तश्कील के लिए वज़ीर ख़ारिजा की अमली काविशों को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि दुनिया की सियासत में ये खित्ता इंतहाई अहमियत इख्तियार करने जा रहा है। दुनिया अफगानिस्तान के मसाइल को समझे। तोरखम बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से 10,000 अफराद के इनखला में मुआवनत की। हिंदुस्तान ने एक तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है कि तोरखम में लाखों लोग हैं जी, कोई कैंप नहीं है। हिंदुस्तान ने, क्योंकि उसको इतनी बड़ी डिफीट हुई है, रॉ जूते चाट रहा है, एनडीएस जो है तलवे चाट रहा है, सारी दुनिया में उसकी जग हंसाई हुई है कि अफगानियों ने उनको शिकस्त दी है। और 40 साल से जो अफगानी पिस रहा है, 40 साल से अफगानी जो इम्तहान में गुजर रहा है, उसका अब अपना इम्तहान है कि वो दुनिया के यार पर पूरा उतरे, और जो दुनिया के साथ उसकी कमिटमेंट है उसको पूरा करे। मेरे पठान भाइयों, ये रीजन बदलने जा रहा है, ये खित्ता इंशाअल्लाह तरक्की करने जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान से मशरूत है। अफगानिस्तान में अमन और तरक्की होगी तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये खित्ता तरक्की का जीना बनने जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पीटीवी को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने और इसकी तरक्की के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। पीटीवी लाहौर मरकज़ में मुलाजमीन से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने कहा कि पीटीवी न्यूज़ की नशरियात को डिजिटलाइज़ कर दिया गया है और बहुत जल्द पीटीवी होम और स्पोर्ट्स को भी डिजिटलाइज़ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन की माशी खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन के लिए हाउसिंग स्कीम ला रहे हैं। पीटीवी की रौनकें बहाल की जाएंगी और इसे मुल्क का बेहतरीन चैनल बनाएंगे। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि काम करने वाले मेहनती मुलाजमीन की हौसला अफजाई की जाएगी ताकि वो और भी ज़्यादा मेहनत और लगन से इदारे की खिदमत करें। इससे कबल पीटीवी लाहौर मरकज़ पहुँचने पर वफाकी वज़ीर इत्तलात का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर कानून व इंसाफ बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद फ़रूक नसीब ने फौजदारी कवानीन में इस्लाहात के हवाले से वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। वज़ीर कानून ने तमाम मुजव्वज़ा तरामीम पर मुश्तमिल एक जामे दस्तावेज़ ख़त के साथ वज़ीर आज़म को इरसाल की है। वज़ारत कानून व इंसाफ के मुताबिक कवानीन में 225 मरकज़ी और 644 ज़ैली तरामीम तजवीज़ की गई हैं। इन तरामीम का मकसद फौजदारी इंसाफ के निज़ाम में मुकम्मल तौर पर इस्लाहात लाना है। इन कवानीन में तरमीम के हवाले से तमाम मुतल्लिका महकमों से राय ली गई है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा है कि पाकिस्तान अब हकीकी मायनों में तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अब सारी तवज्जो गरीब आवाम के मसाइल के हल पर है। उनकी ख्वाहिश है कि तमाम वसाइल गरीब आवाम पर खर्च हों। नौशहरा के इलाके मानकी शरीफ में पीटीआई कारकुनों से खिताब करते हुए परवेज़ खटक ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत देही तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, जिससे शहरों की जानिब नकल मकानी की रोकथाम में मदद मिलेगी। वज़ीर दिफा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क और कौम की खातिर सख्त फैसले किए, जिसकी बुनियादी वजह नवाज शरीफ और जरदारी का बेदर्दी से मुल्क को लूटना है। पार्लिमानी उमूर के मुशीर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा है कि हुकूमत ने कारोबार में आसानी और तामीरात के शोबे की तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। पाक चीन दोस्ती सेंटर इस्लामाबाद में 3 रोज़ा तामीराती एक्सपो के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए पार्लिमानी उमूर के मुशीर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि हुकूमत ने तामीरात के शोबे के फ़रोग़ में हायल रुकावटों को कानून साजी से दूर किया, जिसके बायस तामीर और इससे वाबस्ता शोबे की सरगर्मियों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। चीफ डॉक्टर बाबर अवान ने कहा कि हुकूमत ने तामीरात के शोबे के फ़रोग़ में हायल रुकावटों को कानून साजी से दूर किया, जिसके बायस तामीरात और इससे वाबस्ता शोबों की सरगर्मियों में तेज़ी आई है। मसाइल थे बड़े देरीना 74 साल के, जिनको हल कर दिया है। उनमें से पहला मसला ये था कि पाकिस्तान का जो कानूनी निज़ाम है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बैंक्स के हवाले से थी और इन्वेस्टर्स के हवाले थी, वो फोर्स क्लोजर का लॉ था। उसमें बड़ी लंबी लिटिगेशन के बाद हुकूमत कामयाब हुई और वो लॉ
बन गया। पाक चीन दोस्ती सेंटर इस्लामाबाद में 3 रोजा एक्सपो में बिल्डर्स, डेवलपर्स और तामीराती शोबे की बड़ी कंपनियों के साथ बैंकों, सोलर, सैनिटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स समेत इस शोबे से वाबस्ता दीगर मसनूआत के स्टॉल्स लगाए गए। प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है और हम भी एज अ रेगुलेटर वी आर वेरी सपोर्टिव ऑफ इट। हम भी अपने रूल्स रेगुलेशंस में काफ़ी सारे चेंजेस लाए हैं टू हेल्प द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। शहरियों ने नुमाइश में घरों की तामीर और ख़रीदारी से मुतल्लिक मालूमात हासिल की। कंस्ट्रक्शन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना हमारा मुल्क तरक्की करेगा, उतने हमारे रोज़गार, लोगों के रोज़गार बढ़ेंगे। जब से ये कोविड आया है उसमें गवर्नमेंट ने भी इस सेक्टर को प्रमोट किया है, उन्होंने इस पे इंसेंटिव दिए हैं। सो इसके साथ जितनी अलाइड इंडस्ट्रीज थी अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चल रही हैं। हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है कि उन्होंने ऐसे मतलब मौके पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन को इवॉल्व करने की कोशिश की और बहुत अच्छी एमनेस्टी स्कीम दी है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा इस कंस्ट्रक्शन के शोबे में आ रहे हैं। हर इंडस्ट्री इसके साथ साथ चल रही है, इसके साथ जुड़े हुए सारे और सेक्टर्स हैं जो कि एज अ होल हमने हमारे मुल्क को आगे तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। जहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन को इन्हेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो हमें ग्रीनरी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, हमें फसलों के लिए जगह छोड़नी चाहिए। तामीराती शोबे को सहूलतों की फराहमी से शहरियों को सस्ते और म्यारी घरों की फराहमी मुमकिन होगी। तामीराती सरगर्मियों के फ़रोग से रोज़गार की फराहमी के साथ इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार में भी इजाफा होगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। खबर दें आपको भारत से, जहां गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान 200 किलोग्राम से ज़्यादा एटमी मवाद की चोरी से एटमी दहशतगर्दी के संगीन खतरात लाहक हो गए हैं। इस तरह के वाक़यात के बाद भारत के हवाले से इन खदशात ने जन्म लिया है कि भारत जौहरी टेक्नोलॉजी की गैर कानूनी तिजारत का गढ़ बन गया है। साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी की जाने वाली टाइम लाइन के मुताबिक 1994 से 2001 तक एटमी मवाद की चोरी और खो जाने के 18 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें 200 किलोग्राम जौहरी मवाद चोरी हुआ है। इंस्टीट्यूट की सदर डॉक्टर मारिया सुल्तान और वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी की जानिब से मुश्तरका तौर पर जारी किए गए रिसर्च पेपर के मुताबिक भारत में जौहरी काबिल इंतकाल मवाद की चोरी के वाक़यात 1970 की दिहाई से शुरू हैं, जिसकी शिद्दत में 1980 और 90 की दिहाई में इजाफा हुआ। ये मवाद भारत में इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के हाथ लग सकता है, जिसके तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। पाकिस्तान और चीन भारत में जौहरी मवाद की चोरी के वाक़यात पर बारहा तशवीश का इजहार कर चुके हैं। नाज़रीन, भारत के शहर मुजफ्फरनगर में आज किसानों का एक बड़ा जलसा हो रहा है, जिसे महापंचायत का नाम दिया गया है। जलसे में रियासत उत्तर प्रदेश के तमाम अजला के अलावा दूसरी रियासतों से किसान बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। ख्याल किया जा रहा है कि ये किसानों का अब तक का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। कई सियासी जमातों ने इस जलसे की हिमायत का ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि जब तक भारतीय हुकूमत मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन वापस नहीं लेती, वो वापस नहीं जाएंगे। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। सितंबर मेरी तारीख का वो बाबे मुनव्वर है ये दिन जिसने एक कौम को खुद उसका पता बतलाया। 6 सितंबर मार्काए हक को बातिल का यौम सई। जब दुश्मन की अददी बर्तरी काम ना आई और गालिब रही एक रविश कलंदराना, एक जज्बाए जादुआना, जुर्रत और सरफराजी के दरख्शां संग मील, जिसने बख्शी वतने अजीज को नई जिंदगी। दिफाए वतन के अजीम जज्बों से मखमूर पाक फौज को सलाम। ये जो खुशबू किसी एक वादे की है,
इसके विरसे का हम इस्तेआरा बने, हर तरफ फैलती बेअमारात में वो जो मंजिल निशान वो सितारा बने। अर्ज की हो वो सरहद के ईमान की, उस पे पड़ने न दे दुश्मनों के कदम। जो भी सरहद हो उसके मुहाफिज है हम, मिलके बांटेंगे सब वो खुशी हो के गम। खुशी हो के गम, खुशी हो के गम। हौसले हो जवां। दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने वाले शोहदा, गाजियों और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों को कौम का सलाम। कल मुल्क भर में यौम दिफाए शोहदा मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने 1965 की जंग में 6 सितंबर को मुल्क का दिफा करते हुए दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। 1965 की जंग में पाक फ़िज़ाइया का शानदार किरदार शाहीनों ने अपने लहू से वफा की वो लाजवाल दास्तानें रक़म की जो रहती दुनिया तक मुजाहिदीन अफलाक की बेमिसाल कुर्बानियों की याद दिलाती रहेंगी। नाज़रीन, मादरे वतन की हिफाजत के लिए ज़िंदगी कुर्बान करना बहादुर सपूतों की रिवायत रही है। हमारी रिपोर्टर हुमा सदफ़ के भाई कैप्टन काशान अली शहीद का नाम भी ऐसे ही जांबाजों की फहरिस्त में शामिल है जो अपनी जान दे देते हैं लेकिन मुल्क पर आंच नहीं आने देते। देखते हैं शाहिद वफा की ये रिपोर्ट। हमेशा रखना जिंदा खुदा जिसे चाहे, शहीद चुनता है खुद ही खुदा जिसे चाहे। आर्मी में जाने के बाद मेरा बेटा कम और कौम की अमानत ज़्यादा। कैप्टन काशान अली शहीद की ज़िंदगी उनकी वालदा के इन अल्फाज की अमली तस्वीर थी। पाक फ़ौज में शमूलियत और कौम की खिदमत उनकी ज़िंदगी के दो बड़े मकासद थे। उन्होंने 2014 में कमीशन हासिल किया और तरबियत के दौरान आला कारकर्दगी दिखाने पर तारीफ़ी असनाद भी पाईं। ताहम उनकी नज़रें रोज़े अव्वल से ही शहादत के मर्तबे पर लगी थीं। अपनी बहनों से कहता था कि मैं परचम में लिपट कर आऊँ, और वो अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की, वो परचम में ही लिपट कर आया। कैप्टन काशान ने अपनी मुख्तसर लेकिन ताबनाक मिलिट्री सर्विस के दौरान जनूबी वज़ीरिस्तान जैसे हार्ड एरियाज़ में फ़राइज़ सर अंजाम दिए और दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की। दहशतगर्दों के बाद उन्हें भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भेज दिया गया, जहाँ पिछले बरस एक झड़प के दौरान लगने वाले ज़ख्म बिलाखिर उनकी शहादत का बायस बने। शेल लगा उसे और उसने परवाह नहीं की। वहाँ उसके जो उसकी कमांड में थे वो कहते हैं कि हम चाह रहे थे कि ये अंदर आ जाएं, मगर वो वहाँ खड़ा हुआ दीवार के पास लड़ता रहा। जो उसकी शादी वाले दिन की तस्वीर है आप वो देखें, और उसके ताबूत में जो उसका चेहरा है आप उसको देखें, उसके चेहरे पे उसी तरह मुस्कुराहट है। कैप्टन हाफिज काशान अली अच्छे इखलाक और खुश मिजाज तबीयत के बायस अपने बहन भाइयों और दोस्तों में यकसा मकबूल थे। ये जो मेरी नई पहचान है कि मैं एक शहीद की बहन हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही अहम है, ये मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। जिस वक्त नौजवान कैप्टन काशान ने जामे शहादत नोश किया, उस वक्त उनकी शादी को सिर्फ 6 माह हुए थे। उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ लाहौर के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। कैप्टन काशान अली और उन जैसे हजारों शोहदा की कुर्बानियों का समर है कि आज वतन अजीज़ में हम एक महफूज ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शाहिद वफा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जंग सितंबर 1965 में भारतीय जारहियत के खिलाफ जहां पाक फौज ने हर महाज पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, वहीं पाकिस्तानी कौम खुसूसन लाहौर, सियालकोट और सरगोदा के शहरियों ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, जिस पर इन शहरों को हिलाल इस्तिकलाल मिला। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सादिक बलोच। सितंबर 1965 में जब मकार दुश्मन ने रात के अंधेरे में लाहौर और सियालकोट पर हमला कर दिया तो पाक फौज ने अपने से कई गुना बड़ी और हमला आवर भारतीय फौज को बावर करा दिया कि उसने किस कौम को ललकारा है। दुश्मन के अचानक हमले की खबर पर पूरा पाकिस्तान जाग उठा। जंग शुरू हो चुकी है,
दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। आजमाइश की घड़ी में आपको मुकम्मल तौर पर पुरसकून और मुतहद रहना चाहिए। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। शाहीनों के शहर सरगोधा को पाक फिजाइया का घर होने पर दुश्मन की बुरी नज़रों का सामना था, तो शहर इकबाल सियालकोट पर लाइन ऑफ कंट्रोल और चविंडा सेक्टर पर भारतीय टैंकों ने जलगार की। मगर सरगोधा और सियालकोट के गजूर शहरियों ने हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का सबूत दिया। यही जज्बा जिंदा दिलाने लाहौर के बासियों का भी था। पाकिस्तान के जो शहर हैं सियालकोट, लाहौर और सरगोधा, इनकी आवाम की जो मिसाली जज्बा था, वो उस जज्बे की बुनियाद पर हमारी फ़ौज का भी जज्बा बुलंद हुआ और उस जज्बे की बुनियाद पर हमें हलाल इस्तिकलाल का निशान भी दिया गया। लाहौर के शहरी तो हाकियाँ, लाठियाँ और बंदूकें लेकर बेदिया नहर पर पहुँच गए। यूं इन तीनों शहरों के गयूर बासियों ने कौम की तर्जमानी की और सीना तान कर अपनी सिपाह के पीछे मैदान अमल में नजर आए। हिलाल पाकिस्तान इन शहरों के जुर्रतमंद शहरियों के लिए एजाज से कम नहीं। हिलाल इस्तकलाल सिर्फ परचम ही नहीं, लाहौर, सियालकोट और सरगोधा के गयूर अवाम की बहादुरी और जुर्रत का अलम भी है। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने कहा कि बिलावल का फार्मूला थोड़ी सी बारिश में भी नाकाम हो गया है। इस वक्त थोड़ी बारिश में भी शहर के कई इलाके डूबे रहे। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि इस दफ़ा बड़ी शाहराहों पर पानी जमा न होने की वजह वज़ीर आज़म इमरान खान का पिछले साल एक्शन लेना है। NDMA की जानिब से 35 अरब की लागत से शहर के 3 बड़े नाले भी साफ़ किए गए। इन नालों की वजह से शहर इस बार बड़ी मुसीबत से बचा रहा। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत एक भी नाला साफ़ नहीं कर सकी, जिसकी वजह से कई इलाकों में आज भी पानी मौजूद है। कामयाब जवान प्रोग्राम के जरिए नौजवानों की कामयाबियों का सफ़र जारी है। एबटाबाद की माजूर खातून आमना रशीद भी नौजवानों के लिए मिसाल बन गई हैं। आमना रशीद ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में महारत हासिल की और स्किल स्कॉलरशिप प्रोग्राम में टॉप करके सबको पीछे छोड़ दिया। आमना रशीद ने जिस इदारे से तरबियत हासिल की, उन्हें माजूरी के बावजूद इस इदारे में मुलाजमत भी मिल गई। सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार ने आमना रशीद की कहानी ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि आमना रशीद की मेहनत हर नौजवान के लिए काबिल तक़लीद सबक है। उन्होंने कहा कि ऐसे नौजवानों पर फ़ख्र है जो बड़ी से बड़ी परेशानी को रुकावट नहीं बनने देते। कामयाब जवान प्रोग्राम आमना रशीद जैसे हज़ारों नौजवानों के लिए सहारा बनेगा। उस्मान डार ने कहा कि नौजवान हिम्मत, मेहनत और लगन दिखाएं, हुकूमत ताउन और हौसला अफजाई करेगी। नाज़रीन, खैरात का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद रज़ाकाराना और खैराती कामों के जरिए दुनिया भर में लोगों, गैर सरकारी तंजीमों और दूसरे मुतल्लिका इदारों में ज़रूरतमंदों की मदद का एहसास बेदार करना और मुतहर्रिक होना है। रिपोर्ट कर रहे हैं शिराज दुरानी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2012 में मदर टेरेसा के यौम वफ़ात 5 सितंबर को वर्ल्ड चैरिटी डे के तौर पर मनाने की मंजूरी दी थी। इस्लामी अकायद के मुताबिक सदका व खैरात और अतियात बलाओं और मुसीबतों को टालने के साथ साथ पिसे हुए तबके की खैर आफियत और सलामती के ज़ामिन हैं। माली तौर पर किसी की मदद के बेशुमार तिब्बी, नफ्सियाती व मुआशरती फ़वाइद हैं, जिनकी साइंस ने भी तस्दीक की है। दीन इस्लाम में ज़कात भी एक अहम फरीज़ा है। गोया इस्लामी मुआशरे में ज़रूरतमंदों की मदद करने के अमल को हर साहिब हैसियत पर फ़र्ज़ करार दिया गया है। कुरान करीम में कई मकामात पर अल्लाह की राह में माल खर्च करने की तरगीब दी गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में भी गरीब, मुस्तहकीन, नादार लोग ज़रूरतमंदों के ऊपर ख़र्च करने की बेहतरीन अंदाज में अक्सर मकामात पर तालीम दी गई है। और ये भी कहा गया है कि सदका करने के बेशुमार फ़वाइद में से, फ़ज़ाइल में से एक ये भी है, ये जहन्नम की आग को बुझाता है। दुनिया भर में खैरात करने वाले ममालिक में पाकिस्तान सर फहरिस्त है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी हर साल तकरीबन 240 अरब रुपए खैरात की मद में खर्च करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मनसब इक़्तिदार संभालने से पहले अंदरून व बैरून ममालिक पाकिस्तानियों और इंसान दोस्त तंजीमों से अतियात जमा करके मुल्क के गरीब व नादार अफराद के बेहतरीन, जदीद और मुफ्त इलाज के लिए शौकत खानम कैंसर अस्पताल जैसा अजीम इदारा कायम किया। पाकिस्तानी पहलवान इनाम बट ने इटली में वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इनाम बट ने 90 किलोग्राम फ्री स्टाइल बीच रेसलिंग के फाइनल में यूक्रेन के पहलवान को 3-0 से शिकस्त दी। कौमी परचम सरबुलंद करने वाले रेसलर का कहना है कि सपोर्ट मिलती रहे तो वो मजीद टाइटल जीत कर मुल्क और कौम का सर फख्र से बुलंद करते रहेंगे।
नाज़रीन, इसके साथ ही कैबिनेट आवर का वक्त खत्म हुआ। रिजवान अरिया अहमद, नाजिया कमल और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।